Recently, the entire country has seen a very heart-wrenching incident, जहां पे ये भी नहीं पता कि कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे इस पर्टिकुलर गैंग रेप केस में in Kolkata. So what is it as a society that we are supposed to do so that this doesn't happen again? Unfortunately, right after this particular incident, we heard of another incident in Badlapur, another rape incident in Uttarakhand, and many more that have been unreported yet. And maybe it was because of that the highest court of our country and the highest judge of that court, the Chief Justice of India, said, we cannot wait for another rape case to do something about it. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई है इस पर्टिकुलर केस को लुक इनटू करने के लिए. क्या केवल एक टास्क फोर्स इनफ है? Will this stop any other kind of gang rape? Is a gang rape just about raping somebody, or is it absolute hatred towards the womankind by some men? Let's try to understand what has happened. But before that, let me give you an announcement. We have a Raksha Bandhan sale going on at Maluka IAS, जहाँ पे हर एक UPSC aspirant को online as well as offline courses में 20% off मिलेगा from the 18th till the 25th of August for all both online as well as the offline courses. So do not waste this opportunity and join us today. अब देखते हैं कि हुआ क्या है. तो दो तीन चीजें. सबसे पहली बात तो CAPF की फोर्सेस को लगा दिया है उस अस्पताल में ताकि और ज्यादा ग्रूसम एक्ट ना हो. हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस अस्पताल के सामने वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो उनका मूल अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है. एंड सो कोलकाता की पुलिस, वेस्ट बंगाल की पुलिस को उनको मारना नहीं चाहिए, उनके साथ गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए. The second thing is that the ex-principal of this particular hospital, जिनके ऊपर काफी सारी allegations लगी हैं, शायद उनके ऊपर एक पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा by the CBI. We will try to understand what is a polygraph test और उसकी legality क्या है as per our laws and as per our constitution. And finally, ये task force क्या है और इसने क्या काम करना है is in this particular case. But before I go ahead, there is something that I'd like to bring about to your attention. जितने भी लोग इस महिला का नाम यूज कर रहे हैं या इस महिला के चेहरा यूज कर रहे हैं अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, अपने कमेंट्स बढ़ाने के लिए, let me tell you this is absolutely disgraceful and against the court of law. तो ऐसे टाइप के लोगों के ऊपर पनिशमेंट भी हो सकती है और काफी ज्यादा ग्रूसम पनिशमेंट हो सकती है. सो सिर्फ और सिर्फ अपने सोशल मीडिया के लाइक्स बढ़ाने के लिए don't try to demean someone who has passed away. That is all I'd like to say. Baki, the law will take its own course. Now let's try to understand what has happened in this particular case, which has happened in West Bengal. So काफी सारे doctors and rightfully so, and even the nurses and even the students of medicine, not only in Kolkata by the way, all across the country, सारे के सारे peacefully protest कर रहे हैं जो कि इनका मूल अधिकार है. Right to assemble and right to peacefully protest against any kind of an action is a fundamental right. It is seen that things are sometimes in vogue. You see, a certain incident happens, सारे के सारे उसके ऊपर सोशल मीडिया में बात करते हैं और उसके बाद खुद भी भूल जाते हैं और उनको लगता है यार ये चीज हमारे देश में तो हुई है लेकिन हमारी सिटी में नहीं हुई, हमारे लोगों के साथ नहीं हुई, तो भाड़ में जाए. And that is exactly what is happening in this entire country today. We'd rather talk about our celebrities and our politicians than actually the problem at hand. And so to keep this thing alive, to actually try to understand कि क्यों sexual harassment होता है of women at workplace, ये particular protest चल रहा है in West Bengal, right? And right now it has gone to the Supreme Court of India. Now what is this polygraph test? इसको unofficially थोड़ा सा lie detector test करके भी बोल देते हैं जो कि गलत होता है. एक्चुअल टर्म पॉलीग्राफ टेस्ट होता है. अब होता यह है कि शुरुआत में जब हम झूठ बोलते थे, जब हम छोटे थे, सबने झूठ बोला है और जो इंसान बोलता है कि हमने झूठ नहीं बोला वो अपने आप में एक झूठ है, राइट? इनिशियली जब हम झूठ बोलते थे एंड यूजुअली अपने पेरेंट्स को ही झूठ बोलते थे तो हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता था. सम पीपल यूज्ड टू स्टार्ट स्वेटिंग और आई कॉन्टैक्ट तो हम ले ही नहीं सकते थे. बट आज की डेट पे तो हम छटे हुए खिलाड़ी हो गए हैं झूठ बोलने के लिए. आंखों में आंखें डाल के थोड़ा स्लाइटली स्माइल करके हम लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं. तो हम जैसे ऐसे छटे हुए खिलाड़ियों के ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट काम नहीं करता है. एंड शायद इसी वजह से
हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब ये है सिर्फ इसके बलबूते पे एक इंसान को गुनहगार नहीं बोला जा सकता। बट दिस इज वन ऑफ द वेज टू सी whether a person is actually guilty or not. Just a way to see it, but not a conclusive evidence. So like I said, in a polygraph test, you look at the breathing, the stomach breathing, the chest breathing, the sweat, and the blood pressure. But like I said, it's very easy, very, very easy for some people to actually subvert this particular test. झूठ बोलते हुए लोगों का भी ये वाला टेस्ट में आ जाता है कि भाई वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि उनका ओलंपिक का मेडल है झूठ बोलने में, राइट? सो अब पता नहीं इसके बेसिस में कुछ पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ सेज विद रिस्पेक्ट टू अ पॉलीग्राफ टेस्ट। सो फर्स्टली, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कोर्ट ऑफ लॉ में सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे हम जीत नहीं सकते, हमें काफी ज्यादा पुख्ते सबूत चाहिए होते हैं, विच इज यूज्ड टू बी अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब तो नई एक्ट्स बन चुकी हैं इस चीज को लेके, बट नई वाली एक्ट्स में भी कहीं ना कहीं सेक्शंस चेंज हुए हैं, लेकिन प्रोविजंस आर फिर भी द सेम, राइट? एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग, सिक्योरिटी क्लियरेंस, इन सब के लिए ये यूटिलाइज किया जा सकता है। लाइक आई सेड, द एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि आपने अपने जिंदगी में कितना झूठ बोला है और कितने झूठ आपके पकड़े गए हैं और कितने झूठ आपके पकड़े नहीं गए हैं, राइट? सो वेरी वेरी लेस रिलायबिलिटी। लीगल एंड एथिकल कंसर्न्स के बारे में अगर हम ये बात करें, so polygraph test कहीं ना कहीं there are critics that say it goes against a fundamental right of an accused। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में भी fundamental right सिर्फ और सिर्फ victims को नहीं मिलता, accused को भी मिलता है। And one of the fundamental rights is Article 20 Clause 3 that says you cannot force a person to be a witness against oneself, right? अगर मैं अपने खिलाफ गवाही voluntarily दे रही हूँ वो अलग बात है, वो confession है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जबरदस्ती करके मुझे मेरे ही खिलाफ गवाही दिलवाना ये मेरे मूल अधिकार के खिलाफ है। शायद इसी वजह से जो कन्फेशन आप पुलिस के सामने देते हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं होता है, राइट? सो कहीं ना कहीं फॉल्स पॉजिटिव्स भी होते हैं। एडमिसिबिलिटी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा कॉशियस ये चीज होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट इज नॉट टू मच। एंड लाइक आई सेड, अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स आल्सो से कि ऐसे टाइप के टेस्ट करवाने का मतलब ये है यू आर फोर्सिंग द पर्सन टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ एंड एवरीवन हैज द लीगल राइट टू अ लॉ कोर्स। एट द एंड ऑफ द डे, अजमल कसाब करके एक टेररिस्ट था, उसके पास भी एक एडवोकेट था। वो आपको सही लगता है या बुरा लगता है वो आपके ऊपर है, बट दैट इज व्हाट द लॉ सेज एंड टिल द टाइम द लॉ डज नॉट चेंज, दैट इज हाउ वी विल डील विद आवर केसेस इन आवर कंट्री, राइट? नाउ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात हो गई। इनफैक्ट इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स अ फंडामेंटल राइट, राइट? अ बर्थ राइट ऑफ अ पर्सन। एथिकल कंसर्न्स की बात अगर हम लोग ये करें तो कहीं ना कहीं व्हाई डू वी फील दैट व्हाई शुड वी नॉट फोर्स अ पर्सन टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ? बिकॉज ही हैज अ लॉ कोर्स, because he has a right to privacy, even an accused has a right to privacy, right? Again, you might like it, you might dislike it, but that is how it is, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट है जिसका नाम है रेफर्मेटिव थ्योरी। हम हमारे देश में ये मानते हैं कि किसी इंसान ने अगर कुछ बुरा किया है, उसमें फर्ज करो अगर 10 क्वालिटीज है, 9 खराब क्वालिटीज है, एक अच्छी क्वालिटी है, तो we do not focus upon the 9 bad qualities, we actually focus on that one good quality and we try to reform that individual। शायद इसी वजह से हमारे जेल को भी सुधार घर बोला जाता है। लेकिन अगर यही चीज अगर हम डिफरेंट कंट्रीज में देखें, सो फॉर एग्जांपल अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं जो थ्योरी है वो एक इंसान को पनिश करने के लिए दी जाती है, इट्स अ प्रिवेंटिव थ्योरी। वहां पे ये माना जाता है कि एक इंसान सुधर नहीं सकता तो उसको ज्यादातर जेल में ही रखो क्योंकि उसने दोबारा से सोसाइटी में आके वही काम करना है। अगर चाइना की बात करें तो वो डेटरेंट थ्योरी मानते हैं, जहां पे ये बोला जाता है कि जैसी पनिशमेंट दी जाए उससे सोसाइटी डर जाए। सो चाइना में अगर ऐसे टाइप का कोई इंसिडेंट होता है तो सामने खड़े होके बंदे के आंखों में पट्टी बांध के शॉट्स आर फायर्ड एट दैट पर्सन। उसको पता भी नहीं चलता, उसको सुन रही है आवाज बंदूक की, उसको ये नहीं पता कि कब वो गोली उसको लगेगी। अब वो तो इंसान मर ही रहा है, लेकिन सोसाइटी में भी जब ये कहीं ना कहीं वार्निंग सिग्नल आ जाता है कि अगर ऐसा काम करोगे तो ये आपका परिणाम होगा, तो कहीं ना कहीं पीपल गेट डिटर्ड, दे गेट स्कैर्ड ऑफ डूइंग सच अ थिंग। और सऊदी अरेबिया की तो बात ही अलग है, दैट इज एन
you know, they are giving you a punishment to give out an example to the society. बीच चौराहे पे खड़े हो करके उस stones are pelted at that person. वो सिर्फ वही बात है, वो इंसान तो मर ही रहा है, लेकिन सारी की सारी सोसाइटी देख रही है उस चीज को. अब क्या ऐसे टाइप की थ्योरी इंडिया में होनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो, बट लेट्स सी व्हाट यू थिंक अबाउट इट. But as of now, what we follow is a reformative theory, right? And which is why such regulations are made. अब क्या केवल एक task force enough है to take care of such an incident? I don't know. I don't know what you think. I don't know what is your subjectivity. We are very, very emotional about this particular incident because this was not just about sexually violating a woman. This was an entire warning towards the entire womankind that you try to disagree with us and this is what is going to happen to you because we are men and we can do it. And it's basically that. तो ये सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं थी, ये खुंदक थी, ये एंगर था कि ये हम करके दिखाएंगे एंड वी विल बी सेव्ड. अब ये सेव कौन कर रहा है इन लोगों को ये हमें पता नहीं, बट एटलीस्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज ट्राइड टू डू समथिंग. अब उसकी एफिकेसी क्या होगी वो हम देखेंगे आगे चल के. सो व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज डन is that they have made a national task force जहां पे 10 members होंगे और इनको एक interim report बनाने की बात की है 3 हफ्तों में and एक final report in 2 months. ये जरूरी भी था कि फास्ट ट्रैक तरीके से इसके ऊपर काम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक तरीके से काम नहीं होगा तो ये वाले इंसिडेंट को यूज करके 100 और ऐसे इंसिडेंट्स होंगे और 100 और इंसिडेंट्स की वेट क्या कर रहे हैं. इसी के बाद बदलापुर में भी एक इंसिडेंट हुआ था. इनफैक्ट यही कोलकाता गैंगरेप केस के बाद उसी प्रोटेस्ट में एक महिला का उस प्रोटेस्ट में ही रेप हो गया था एंड दैट इज व्हाट वी सॉ इन द निर्भया केस आल्सो. सो आई डोंट नो व्हाट इज दिस सिक मेंटालिटी बट इट इज देयर एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट एंड मे बी दिस टास्क फोर्स विल हेल्प. आई होप इट डज, राइट? बट even if it doesn't, point is we as society members should understand what is happening. And this is not about all the men in our country. But there are some people like that. इनकी कैसी अपब्रिंगिंग हो रही है, इनको क्या बताया जा रहा है इनके घरों में, ये वाली चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. इनको क्या सिखाया जा रहा है इनके स्कूल्स में, इनके कॉलेजेस में, इनके ग्रुप में क्या कैसे टाइप की बातें हो रही हैं, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की बात है. और कहीं ना कहीं इसको जड़ से हटाने की बात है. और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ये टाइप की कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए. यू सी आवर सोसाइटी इज सच, पॉपुलस कंट्री हम सबसे बड़े हैं, लेकिन हम लोग अपने ही घरों में अपने ही बच्चों को अबाउट सेक्स एजुकेशन कुछ भी नहीं बताते हैं, क्योंकि हम खुद उसको एक टैबूड सब्जेक्ट मानते हैं. शायद ये भी एक रीजन है व्हाई दिस इज हैपनिंग सो रैम्पेंटली इन आवर सोसाइटी, राइट? सो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने बात कर ली है. देयर इज दिस पर्टिकुलर केस, राइट? एंड लाइक आई सेड, disclosing the identity of the victim is a violation of its निपुण सक्सेना केस. तुम रेडिट देख लो, रेडिट क्या, सिंपली गूगल के ऊपर लिख लो, तुम्हें नाम भी पता चल रहा है उस महिला का, उसकी शक्ल भी दिख रही है, उसकी फोटो भी दिख रही है. मतलब ये चीप पब्लिसिटी करके तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अपना नाम सामने निकालने की. अपने आप को थोड़े और लाइक्स मिल जाएंगे, तुम वायरल हो जाओगे. इस वजह से तुम एक पर्टिकुलर डिसीज की ऐसी तौहीन कर रहे हो. Such people should be put behind the bars in the very first go, because this cheap publicity is not going to take you anywhere, right? And that is also a case, by the way, Nipun Saxena case. Maybe you can tell your peers about it so that you don't fall into the trap of this ever, right? If we talk about the case, the 10-member task force is going to be headed by the Vice Admiral Aarti Sareen. So इनका नाम आपने learn करना है, Vice Admiral Aarti Sareen. 10 मेंबर की जो टास्क फोर्स है, इनके हेड का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी, राइट? एंड बाकी अगर हम इंडिया के इनिशिएटिव्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली बार जब हमारे देश में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस का केस आया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उस समय पे हमारे देश में कोई ऐसा लॉ ही नहीं था जो हमें बताता था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस होता क्या है. एंड सो हमने एक कन्वेंशन के बेसिस पे ये विशाखा गाइडलाइंस बनाई थी. बाय हमने आई मीन द सुप्रीम कोर्ट. And the name of that convention is Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. So वो वाली convention is another term for a treaty. उसको यूज करके हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशाखा गाइडलाइंस बनाई थी और वो विशाखा गाइडलाइंस के बेसिस पे हमारी एक्ट बनी थी, पॉश एक्ट बोलते हैं जिसको,
Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace Act of 2013. And that is what defines what is sexual harassment of women at workplace. I truly, truly believe that sexual harassment is not just pertaining to one gender. It is also happening to males. It is also happening to transgenders. शायद इसी वजह से हमारे जो 3 नए क्रिमिनल लॉज बने हैं, वहां पे कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो भी सेक्शन है, दैट इज ऑल जेंडर न्यूट्रल, राइट? सो कहीं ना कहीं वो उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, एटलीस्ट एज पर लॉ, राइट? इंडिया हैज आल्सो एंडोर्स्ड द मेक्सिको प्लान ऑफ एक्शन, जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ता है, राइट? इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्शन, indecent representation of women act 1986, national policy for the empowerment of women. My point is we have the laws, we have too many laws, और सारे laws अच्छे laws हैं, कोई खराब law तो है नहीं. law की implementation के ऊपर problem है. ये problem ये भी है, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी इस चीज के बारे में बात की थी, that one of the prime accused, allegedly accused ही है, convict तो हम बोल नहीं रहे because we are not the judges, right? So one of the prime accused of this particular case, that man was working for the West Bengal police. He was working for the police. He was a civil volunteer. ये पुलिस किस बेसिस पे उसको काम दे रही थी? क्या उन्होंने वेटिंग की उसकी बैकग्राउंड की? ये सारी की सारी चीजें भी बहुत क्वेश्चनेबल है. अच्छा, जो प्रिंसिपल था उसको 2 मिनट में उधर से निकाल के किसी और को प्रिंसिपल बना दिया. किसने बनाया? क्यों? किस बेसिस पे? That is also something which is important. Who is the one who is saving this particular principal? That is also very, very important. So all of these things are very important to understand why this incident has taken place, right? Now strategies की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी सरकारी schemes, बहुत सारे laws हैं. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme, उज्ज्वला scheme, निर्भया fund, Ministry of Women and Child Development. Point is, more than this, there has to be a social revolution. Our mindset has to change. God knows what these people are angry about. And why are they showing so much hatred towards one particular gender? But they need to not care about that and maybe compete with them. And on the other hand, yes, अगर ये वाली चीज आदमियों के साथ भी हो रही है तो उनको भी बात करनी चाहिए. ट्रांसजेंडर्स के साथ हो रही है तो उनको भी बात करनी चाहिए. We should as a society be able to talk about such things in a very, very free manner. पर कहीं ना कहीं वही हमारी चूक रह जाती है. हम इनके बारे में बात ही नहीं कर पाते. Right? So कहीं ना कहीं सरकार has done whatever they could. Women safety in trains, मेट्रो की बात ले लो. मेट्रो में एक अलग से एक कोच होता है जो सिर्फ महिलाओं का होता है, और ये हम सब ने देखा है. अगर कोई आदमी वहां पे स्टेप इन करता है तो पुलिस डंडे मार के उसको निकालती है. सो ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं हो रही, बस इसके बावजूद लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं. सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ विमेन, सेफ्टी इन मेट्रो, universalization of women helpline, all of that is there, right? But how much of it is being actually utilized, that is the problem. So I think we are working towards it. A lot of awareness is important, and I think a lot of sex education is also important in our country, something which is absolutely a taboo subject in our house, in our society, in our schools, in our colleges. Let me know what you think about it, right? So now that we are done with this, I'd like to give you a mains practice question. Read it, write it, और अपने teachers से इसको correct करवाइए, right? So the recent Kolkata rape case has brought significant attention to the issues of sexual violence and the criminal justice system in India. Analyze the key legal, social, and institutional challenges highlighted by this case. Evaluate the effectiveness of current laws and mechanisms in addressing sexual violence, wherein you should also say why it is not effective, right? And propose comprehensive reforms to enhance justice for the survivors of sexual crimes. Now, before I go ahead, I'd like to make 2 important announcements. जितने भी बच्चे 2025 UPSC prelims के लिए बैठ रहे हैं and they are looking for a test series which is absolutely aligned with the UPSC paper pattern, look nowhere else and come and join Maluka IAS today, जहां पे एक बच्चे को 64 टेस्ट मिलेंगे, 34 prelims, 30 mains, along with that discussion by our top mentors in both English as well as Hindi, जिस भी माध्यम में आप ज्यादा comfortable है, at very, very affordable cost. And finally, keeping in mind that education should be affordable for everyone, Maluka IAS has considerably reduced the cost of the monthly compilations of current affairs, and which is available again in both English as well as Hindi. So thank you very much, and I will see you soon with another video.